साकेत जी जुड़े हैं या नहीं? साकेत जी अभी नहीं जुड़े हैं, बीच में ज्वाइन कर लेंगे, आप कंटिन्यू करिए। अच्छा, dear participants, good afternoon to all of you. Hope I am audible. Yes, sir, you are audible. So I am seeing already that some of the candidates, they are inboxing in the chat box. What are the questions they want to ask? It is very good. We are keeping a note of all these questions. Now, just to begin with, this session we will be dealing with two topics. Before that, I would like to introduce myself. I am Santosh Kumar, 2014 batch of IS in Union Territory Cadre, and presently I am posted in Arunachal Pradesh as Secretary in Arunachal Pradesh Staff Selection Board. For the first session, and basically I am from Samastipur, Bihar. For the first session, that is mainly about how to understand and grasp the issues related to Bihar as a state. I will be accompanied by my colleague Saket Malviya who is also 2014 batch IS of MP cadre, and basically he belongs to Jamui Munger area, and presently he is CEO Jila Parishad in Madhya Pradesh in Singrauli. So we both of us will be trying to interact with you all and sharing what are the probable questions which can be asked in the interview. Now, we will first begin with Saket ji, and we will be interacting. After that, if you have any questions, then you can ask directly also, or you are some of you are also writing in the chat box. That is a very good. We will try to answer all of your questions. Now over to Saket ji. Thank you, Santosh ji. Hope I am audible to everyone. Good afternoon to everyone who is connected through this. Yes, अभी तक? Yes, you are audible, Saket ji, and I would request all the members except the speaker that kindly mute your microphone so that only when someone is speaking they have to unmute it. So when you have to speak, only then unmute. Otherwise, keep your microphone in muted condition. Thank you.
Thank you, Santosh ji. So, good afternoon to all the participants. जैसा कि संतोष जी ने आप सभी लोगों से डिस्कस किया अभी एट द बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कि बीपीएससी के इंटरव्यू शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए हम कुछ इम्पोर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे. I would be keeping myself limited to some of the economic and industrial issues. उसमें भी ऐसा नहीं है कि मैं कोई ज्ञान दे रहा हूं आप लोगों को कि यही चीजें करनी है. मैं सिर्फ कुछ पॉसिबल सोर्सेस के बारे में डिस्कस करूंगा जहां से आप लोग पढ़ सकते हैं और उसको तैयार कर सकते हैं. एंड अगर किसी पार्टिसिपेंट को कभी कोई स्पेसिफिक डिटेल्स के बारे में डिस्कस करना हो तो वी कैन discuss separately through different forums, maybe on a call or chat or other mediums. तो सबसे पहले मैंने कुछ पॉइंट्स तैयार किए हैं जो आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा कि इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल इश्यूज के बारे में क्वेश्चंस कैसे तैयार पूछे जा सकते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उनको हम ध्यान में रख सकते हैं फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इंटरव्यू. करीब 10 मिनट, हार्डली 15 मिनट्स मैं डिस्कस करूंगा, उससे ज्यादा नहीं. जहां तक आप सभी लोग जो भी इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हुए हैं, आप सबने मेंस की पढ़ाई की होगी, तो ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट्स. बहुत सारे चीजें जो हैं एज ए करंट अफेयर्स और जनरल स्टडीज के जो पेपर्स होते हैं उसके लिए काफी सारी तैयारियां की होंगी. लेकिन मैं सिर्फ इंटरव्यू के लिए ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप सभी लोग ईच एंड एवरी कैंडिडेट शुड आल्सो प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू एज यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर मेंस. तो इंटरव्यू के लिए भी उसी तरह से आप तैयारी करिए जिस तरह से मेंस के लिए हम तैयारी करते हैं. हाँ, ये अलग बात है कि अप्रोच थोड़ा डिफरेंट होगा. तो इन दिस कनेक्शन आप डेफिनेटली इकोनॉमिक इश्यूज और इंडस्ट्रियल इश्यूज के लिए एक 2-4 पन्ने का अपना एक डायरी में रिजर्व करिए और उसमें उन सारे इश्यूज को नोट डाउन करना शुरू करिए कि जिसमें कि इम्पोर्टेंट इश्यूज हो सकते हैं. एंड इट मे गो इंडिपेंडेंस के समय से अभी तक के भी उसमें इश्यूज शामिल हो सकते हैं. ऐसा नहीं है कि केवल कंटेम्पररी इश्यूज हैं. तो and documents हैं which I would suggest to read each and every participant को. That is, one is the economic survey of Bihar और ये ऑनलाइन अवेलेबल है. ये 2020-21 का भी अवेलेबल है और प्रीसीडिंग ईयर्स के भी अवेलेबल है. इकोनॉमिक सर्वे में आपको बिहार के इकोनॉमिक पॉलिसी और इकोनॉमिक स्टेट जो भी करंट सिचुएशन है इसके बारे में लगभग सारी चीजें मिल जाएंगी आपको. बट स्पेसिफिकली मैं उसमें सजेस्ट करूंगा कि आप सारी चीजें पढ़ के उसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है. आप केवल जो एग्जीक्यूटिव समरी है और दूसरा उसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, तो यू मस्ट गो थ्रू दीज 2 चैप्टर्स ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार, maybe the latest edition of 2020-21. ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं. एंड उसके थ्रू आप कुछ की पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं जिसमें कि प्रोबेबल क्वेश्चंस बन सकते हैं. अगर कुछ टेक्निकल टर्म्स अगर आपको समझ में नहीं आता है यू कैन रेफर टू गूगल, और फिर उसमें अगर उससे भी समझ में नहीं आता हो तो डेफिनेटली यू कैन कंसल्ट समवन. हम लोग भी उसमें कुछ हेल्प अगर कर पाएंगे तो दैट वुड बी आवर प्लेजर. एक जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार का जो इंडस्ट्रीज का सिचुएशन है तो उसके बारे में एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट आया था 2016 में. दैट इज कॉल्ड द बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2016. इंग्लिश में ये ऑनलाइन अवेलेबल है, हिंदी में अभी तक मुझे मिला नहीं है. अगर मिलता है तो देन आई वुड लाइक टू शेयर. अगर नहीं मिलता है तो आप लोग भी एक बार अपने स्तर से सर्च करने का प्रयास करें. So this is a very comprehensive document which discusses about the many issues related to industrial situation in Bihar और केवल existing situation के अतिरिक्त उसको किस तरह से प्रमोट किया जा सकता है so that we can have a good industrial environment in the state of Bihar.
तो ये डॉक्यूमेंट से आपको बहुत सारे इंडस्ट्रियल सिचुएशन के बारे में काफी कुछ आइडिया मिल जाएगा, जो कि काफी इंटरव्यू के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तीसरा जो एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो इकोनॉमी से रिलेटेड है, जिसके बारे में आप लोगों को बिल्कुल की पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए, वो है बिहार बजट जो डेफिनेशंस हैं वो भी आपको आने चाहिए, लाइक डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, जीडीपी क्या है, एक्सेट्रा। इस तरह से बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स मिलेंगे। और इसके अतिरिक्त बिहार के बजट का क्या सिनेरियो है, आप हमेशा याद रखेंगे कि जो बजट होता है वो पूरी इकोनॉमिक इस सिचुएशन का जस्ट एक हिस्सा होता है, बट दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। इट्स लाइक बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमी एंड द गवर्नेंस ऑल्सो। तो उसको पढ़ने से आपको बजट के बारे में और बिहार सरकार की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसके बारे में इम्पोर्टेंट आपको पता चल पाएगा। एक जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आना था इंडस्ट्रियल पॉलिसी के संदर्भ में बिहार के बारे में, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाया, दैट वाज द बिहार इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिव्यू 2018। तो बिहार का जो इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट था, जो पॉलिसी रिजीम था, उसका एक रिव्यू होना था 2018 में, बट समहाउ ये आ नहीं पाया था। तो उसमें ये सवाल हो सकता है कि अगर कोई उसमें अगर इसके बारे में अगर अवेयर हो तो हो सकता पूछ सकते हैं कि उसका मेन एजेंडा क्या था उस इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिव्यू का, और किन वजहों के कारण वो अभी तक पेंडिंग है, अभी तक नहीं आ पाया है, और अगर आ गया होता तो उसके कारण बिहार के इंडस्ट्रियल सिनेरियो में क्या वैसा आमूलचूल परिवर्तन या क्या पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकता था। तो दीज 3 डॉक्यूमेंट्स मैं सजेस्ट करूंगा, इंटरव्यू के लिए पर्याप्त होगा। मेरा खुद का ऑप्शनल इकोनॉमिक्स रहा था, और व्हेन मैं इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो उस समय के इकोनॉमिक सर्वे और इन सारे डॉक्यूमेंट्स का एक्टिवली हेल्प लिया था। डेफिनेटली इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी 2016 था, वो नहीं आया था, बट ये जो बाकी बजट विश्लेषण और इकोनॉमिक सर्वे था, ये बिहार के इकोनॉमिक सिनेरियो के लिए काफी हेल्पफुल रहा था। तो आई सिंसियरली होप दैट कि ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के इंटरव्यू के लिए भी काफी हेल्पफुल रहेगा। कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो मेरे दिमाग में आए थे, जो कल से जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हाउ टू इंटरेक्ट विद द पार्टिसिपेंट्स, और जिसके कि बिहार की इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इंडस्ट्रियल रेजिम एंड एनवायरनमेंट पे काफी गहरा इम्पैक्ट रहा है। इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी पॉजिटिव, बट डेफिनेटली ये काफी लिंक्ड रहा है। तो इसके बारे में आप लोगों को कुछ जो भी, जाहिर है कि आप ये जो इकोनॉमिक सर्वे है और इंडस्ट्रियल पॉलिसी डॉक्यूमेंट है पढ़ेंगे तो ये सारे बिंदु उसमें किसी न किसी रूप में आपको मिल ही जाएंगे, बट यू कैन सेपरेटली उसको थोड़ा सा नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि इन सेलिब्रेटेड टॉपिक्स के बारे में अगर कुछ सवाल आए, कुछ क्वेरीज आए, तो आप कंफर्टेबली उसके आंसर कर सकते हैं। तो ये कुछ हमने पॉइंट किया, ये आप लोगों के साथ व्हाट्सएप पे भी शेयर कर लेंगे हम लोग। जैसे एक था भाड़ा समानीकरण, फ्रेट इक्वलाइजेशन की पॉलिसी थी, उसके कारण हमारा काफी प्रभावित हुआ है इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल रेजिम ऑफ द बिहार। देन इन 2000 द डिवीजन ऑफ बिहार हैपेंड, इसके कारण हमारा इकोनॉमिक स्टेटस एंड इंडस्ट्रियल स्टेटस पे चेंजेज हुआ है, प्रभाव पड़ा है। क्या प्रभाव पड़ा है, इट कैन बी ए मैटर ऑफ डिबेट, और इसमें बहुत तरह से क्वेश्चंस पोज किए जा सकते हैं। तीसरा, प्राइमरली जो हमारा बिहार की इकोनॉमी है दैट इज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में क्या क्या इशूज हैं, चैलेंजेज हैं, और क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, not only for the economic environment but industrial environment also. Another जो important issue है, perennial problem है बिहार का, that is the problem of flood। अब इसमें पानी की समस्या भी है, पानी की बहुतायत भी है। क्या इसका इकोनॉमी पे, इंडस्ट्री पर, इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट हो सकता है, लिंक्ड हैं, बहुत तरह से क्वेश्चंस हो सकते हैं। अनदर जो टॉपिक के बारे में हमेशा कहा जाता है कि भाई इंडस्ट्रियल पॉलिसी और इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट, इवन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ बिहार डिपेंड लार्जली ऑन द एनवायरनमेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट। इसके बारे में एक लिंकेज हो सकता है, वेदर इट हैज इम्प्रूव्ड, वेदर इट हैज डिटोरिएटेड, दैट उसमें थोड़ा सा और होमवर्क करने की आवश्यकता होगी।
जाहिर सी बात है कि आप एक बैलेंस्ड व्यू देंगे। जनरली हम प्रो गवर्नमेंट व्यू ही देते हैं, तो हम उसके बारे में मतलब थोड़ा और पढ़ने की आवश्यकता होगी। अनदर इम्पोर्टेंट जो बिहार के साथ एक पॉजिटिव है पॉलिटिकली, दैट इज द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यहाँ पे काफी दिनों से रही है। पिछले अगर हम 15-20 साल का हिस्ट्री देखें तो हमेशा यहाँ पे कोई पॉलिटिकल टसल वाला सिचुएशन नहीं रहा है, हमेशा एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जैसी स्थिति रही है। उसके कारण हमारा इकोनॉमिक डॉक्ट्रिन, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड इंडस्ट्रियल डॉक्ट्रिन किस तरह से इम्पैक्ट हो सकता था या होना चाहिए, इसके बारे में कुछ इश्यूज किए जा सकते हैं। तो आई थिंक मैं जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि आप इकोनॉमिक्स एंड इंडस्ट्रीज के लिए अपना एक एक डायरी या डायरी के कुछ पृष्ठ उसके लिए रिजर्व करिए। अगेन आई वुड रिक्वेस्ट, और उसमें सबसे पहले कुछ जो की टर्म्स हैं उसको आप रिवाइज कर लीजिए और उसके बाद इन सारे बिहार के रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़िए, इसमें से कुछ प्रोबेबल क्वेश्चंस तैयार करिए। हम लोग भी इस दिशा में काम कर रहे हैं। अगर कुछ प्रोबेबल क्वेश्चंस इस तरह तैयार होते हैं तो ड्यूरिंग मॉक इंटरव्यू या ऐसे भी एज ए गाइड कंपाइल करके हम उसको शेयर कर पाएंगे, तो वो भी हो सकता है कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। बट इन द मीन टाइम आप इस दिशा में उसको स्टडी करके बनाना तैयार कर सकते हैं। इसको पढ़ने के बाद अगर किसी के पास कुछ क्वेरीज आता है रिगार्डिंग दीज इश्यूज, कहीं कुछ कंफ्यूजन हो, अंडरस्टैंडिंग हो, कहीं डिस्कशन की आवश्यकता हो, कुछ क्वेश्चंस का जवाब कैसे हमें देना है, हम डेफिनेटली उसको डिस्कस कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट मेरा ये रहेगा, इंटरव्यू में जब इकोनॉमिक्स या इंडस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चंस आता हो तो आप कोशिश करें कि उसके आंसर को जितना हम ब्रीफ रख सकते हैं उतना ब्रीफ रखें, जितने टेक्निकल टर्म्स कम यूज कर सकते हैं उतने कम टेक्निकल टर्म्स यूज करें, क्योंकि आप जैसे ही कोई सवाल का जवाब देंगे उसमें अगर 2-3 टेक्निकल टर्म्स रहेंगे तो आप यकीन मानिए कि हो सकता है उसका डेफिनेशन ही पूछ दे। और अगर आप यूज करते हैं कोई टर्म को और उसके बाद अगर आप वो नहीं जानते हैं उस टर्म को, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव इंप्रेशन जाता है कि जब टर्म का मतलब ही नहीं पता है तो फिर आंसर में आप उसको यूज कैसे कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स का और इंडस्ट्री रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें इन तरह की संभावना ज्यादा रहती है। तो जितना आप कम बोलेंगे और जितने कम टेक्निकल टर्म्स का यूज करेंगे उतना बेहतर रहेगा। लेकिन अगर सही तरीके से आपको कमांड है और आपको लगता है आंसर दे पाएंगे तो बहुत बार ये आपके लिए हेल्पफुल रहता है कि यू कैन कंट्रोल एंड यू कैन डायरेक्ट द इंटरव्यू। अगर वो उससे रिलेटेड सवाल पूछता भी है तो आप कंफर्टेबली जवाब दे सकते हैं। तो इस तरह से 2-3 सवाल तो आपके अनुसार से ही पूछ लिए जाएंगे और उसमें आप अच्छे स्कोर भी कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं समझता हूं कि इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट का जो मेरे अंडरस्टैंडिंग के अनुसार से आप इस दिशा में काम करना शुरू करिए, और इसके अलावा अगर कुछ विशेष होगा तो वी कैन डिस्कस लेटर ऑन। संतोष जी, इकोनॉमिक्स और इंडस्ट्री के बारे में फिलहाल तो मैं इतना ही डिस्कशन करने के लिए अपने को उपयुक्त समझ रहा हूं। इसके बाद में जैसा भी आप कहेंगे तो उसके बाद हम डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, कुछ और इश्यूज या क्लैरिफिकेशन को टेकअप कर पाएंगे। थैंक यू। संतोष जी। Thank you, Saket ji, for the fruitful discussion on topics related to industry and also some of the economic issues related to Bihar. Now, dear aspirants, as you all know, कि हम लोग अभी बिहार के टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो अभी हम ऐसा कोशिश करेंगे कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कि किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं और नॉर्मली पूछे जाते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करने का कोशिश करेंगे। और जैसा कि साकेत जी ने बताया, मेरा भी यही उद्देश्य होगा कि आप लोग उन टॉपिक्स पे फिर से खुद डिटेल में जाए, क्योंकि डिटेल में जाना यहाँ हाफ एन आवर में पॉसिबल नहीं होगा। तो इस सेशन को हम यूज़ करते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, हम यूज़ करते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन जा सकते हैं। और आप लोगों से फिर निवेदन है कि जो माइक है वो आप लोग कृपया करके जो लोग नहीं बोल रहे हैं वो लोग उनको म्यूट कर लीजिए, ताकि जो हम लोग बोल रहे हैं उसको सभी लोग अच्छे से सुन सके। तो अब जाएंगे, जब बिहार की बात होती है तो आपको पता है कि सबसे पहले उसका हम हिस्ट्री से शुरू करते हैं कि एंशियंट पार्ट में जो बिहार था वो कैसा था। हिस्ट्री में भी आप सबसे पहले जाएंगे इंटरव्यू बोर्ड में
तो मैं तो ये कहूँगा कि सबसे पहले आप अपने मन में खुद से क्वेश्चन पूछते रहिए हमेशा कि एज ई बोर्ड आपको कौन सा सवाल पूछ रहा है उसको नोट डाउन करने लीजिए। जाहिर सी बात है बिहार के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा, कब पड़ा, किसने पहली बार इस शब्द का यूज किया, इन सब चीजों से शुरुआत होती है। तो आप हम सबको पता है कि पहली बार जो ये जो शब्द का ओरिजिन जो कहते हैं वो वहां से कहाँ से हुआ, इट हैज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड विहार, जो कि आप वी नो कि इसका जो ओरिजिनेशन है, उद्गम है, वो जो बुद्धिस्ट हिस्ट्री में आप देखेंगे कि वहाँ विहार का यूज हुआ है। और इन आई थिंक the area in the era when Gautam Buddha was there, and thereafter in the time of Ashoka especially यहाँ पे there are lots of Vaud Bihars, तो उसके वजह से बिहार का नाम विहार आया है। तो इसको जब आप पढ़ेंगे डिटेल में तो आपको भी पता चलेगा कि जो गौतम बुद्ध से रिलेटेड जो था, गौतम जो महावीर थे, बुद्धिज्म था, जैनिज्म था, उनका जो ओरिजिनेशन था उसके पीछे क्या था, उस पर हम बाद में आएंगे। नाउ सबसे पहले तो नेम आ गया, उसके बाद हिस्ट्री हो गया, कल्चर हो गया, डिनेस्टी हो गया, एंड अप टू द फ्रीडम स्ट्रगल, वहां तक हमें आना पड़ेगा। तो उसकी शुरुआत आपको पता है, हिस्ट्री की शुरुआत जो है बिहार की वो हो जाता है प्री हिस्ट्री से ही हो जाता है। प्री हिस्ट्री इन द सेंस कि ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्री हिस्ट्री क्या होता है। तो हम सबको पता है कि हिस्ट्री का वो पार्ट जिसका जो डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्री हिस्ट्री बोलते हैं। नॉर्मली हिस्ट्री हम वहां से लेते हैं जहाँ पे क्या होता है, हमें डॉक्यूमेंटेशन मिलना शुरू हो जाता है, जैसे वैदिक पीरियड से मिलना शुरू हो जाता है। उससे अगर हम पहले जाते हैं तो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, एंड उससे भी पहले तो इंडस का तो हमारे पास बहुत सारे क्या है एविडेंस हैं, लेकिन अगर और उससे पहले हम जाते हैं तो हमारे पास एविडेंसेस नहीं मिलते हैं, जिसको हम लोग जो नियोलिथिक बोलते हैं, और भी कुछ कुछ नाम है वो दिए गए हैं। तो उस समय में हमारे बिहार में भी क्या कुछ ऐसे हिस्टोरिकल साइट्स थे? तो इससे भी आपको सवाल हिस्ट्री में लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि जो बोर्ड में बैठे लोग होते हैं उनके पास काफी एक्सपीरियंस होता है अलग अलग सब्जेक्ट का। जैसे एक मैं बोलना चाहूंगा कि एक आप देखेंगे कि उस समय आप देखेंगे कि नवपाषाण काल में, जब नियोलिथिक एज में आप देखेंगे कि नदियों के किनारे जब बस्तियां बस रही थी, तो उसमें देखेंगे कि इंडस तो है ही, उसके बाद धीरे धीरे आप देखेंगे गंगा के मैदानी भाग में भी कुछ बस्तियां जो सेटलमेंट्स हैं वो आए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बिहार में जब नाम आता है तो एक चिरांद का नाम आता है, जो कि गंगा के मुहाने पे चिरांद एक सेटलमेंट आता है, जो कि वही नियोलिथिक एज में आता है। तो वहां से आपको शुरुआत करनी होगी बिहार के बारे में जानने के लिए। फिर उसके बाद जब हम और आगे बढ़ते हैं तो आप देखते हैं हिस्ट्री में आप जाएंगे तो जो महाजनपद काल है, 16 महाजनपदा था। उसके बाद आप देखेंगे फिर अशोका है, उसके पहले एक्चुअली वही हो गया, फिर बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, अशोका है, मगध एम्पायर है। तो जो मगध एम्पायर है वो एक बहुत बड़ी हिस्टोरिकल इवेंट होता है। तो इस सब के बारे में जानना है। देन उसके बाद आगे आप देखेंगे कि जो इंडिया का जो गोल्डन पीरियड बोला जाता है, गुप्ता डिनेस्टी में बोला जाता है। तो गुप्ता काल को गोल्डन एरा क्यों बोला जाता है, तो ये जानना जरूरी है। उसमें आप देखेंगे कि साइंस हो गया, उसके बाद आर्ट्स हो गया, कॉमर्स हो गया, हर एक क्षेत्र में जो होता है काफी हम अच्छा करते हैं, तभी तो उसको गोल्डन एरा बोला जाता है। तो ये सबसे भी सवाल पूछा जा सकता है कि गोल्डन एरा क्या होता है, गुप्ता एज को ही गोल्डन एरा क्यों बोला जाता है। देन आपको क्या करेंगे, गुप्ता एरा का जो गोल्डन एरा है उससे फिर दूसरे अकबर से आपको कंपेयर करा सकते हैं, अशोका से कंपेयर करा सकते हैं, और दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी पूछे जा सकते हैं। खास के अगर किसी का हिस्ट्री ऑप्शनल है तो वो लोग ध्यान से सुनेंगे कि आपको एक से दूसरे जो पीरियड्स है उसमें कंपैरिजन पूछा जा सकता है, और आपसे अपना ओपिनियन पूछा जा सकता है कि आप बताएं कि इंडिया का जो कह सकते हैं जो स्थिति थी इन टर्म्स ऑफ, कभी कभी तो आपको जैसे पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे में पूछा जाएगा कि गुप्ता के टाइम में बेटर था या अकबर के टाइम में, अशोका के टाइम में। कभी कभी देखिए हिस्ट्री को जानने का एक और तरीका है कि जो उस समय के जो आम जनमानस है, जो कॉमन पीपल है, उनकी स्थिति कैसी थी, कॉमर्स कैसा था, वर्ल्ड में इंडिया का क्या पोजीशन था। तो इन सब चीजों पे भी सवाल आ सकते हैं।
फिर उसके बाद आप जानते हैं जब मेडिएवल में आते हैं तो मेडिएवल में जो बिहार से एक जो रूलर होते हैं शेरशाह सूरी का नाम आप सभी ने सुना होगा। तो शेरशाह सूरी का जो पीरियड होता है अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी मस्ट नो। एंड शेरशाह सूरी से जुड़ा हुआ उनका काल है, उनके जो मॉन्यूमेंट्स हैं और कैसे उन्होंने बहुत सारे जो लोक कल्याणकारी कार्य जिसको बोलते हैं वो वर्क्स ऑफ पब्लिक वेलफेयर, तो उन सब से पूछा जा सकता है। आप देखेंगे कि कंपैरेटिव स्टडी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो उसका मतलब ये हुआ कि शेरशाह सूरी की जो तुलना है, कंपैरिजन है, वो आपको आज के रूलर से भी की जा सकती है और उनके जो कंटेम्परेरी रूलर्स हैं जैसे अकबर हो गया एंड देन अशोका हो गया और भी जो ग्रेट रूलर्स हैं उनसे भी किया जा सकता है। तो ये सब भी आपको जानना जरूरी होगा। उसके बाद हम आते हैं, आपको ज्योग्राफी पे आते हैं। तो ज्योग्राफी में जानते हैं कि सेंसस बहुत बड़ा रोल होता है। तो जब आप सेंसस डॉक्यूमेंट में जाएंगे लेटेस्ट में, तो आपको पता चलेगा कि बिहार के बारे में जो भी मेन पैरामीटर्स होते हैं, उसका एरिया कितना है, पॉपुलेशन कितना है, देन अगेन कंपैरिजन कि इंडिया लेवल पे उसका कितना ज़्यादा है, कौन सा पोजीशन आता है, हम लोग का जो बिहार का स्थिति है वो एरिया में कितना है और पॉपुलेशन में कितना है, ये सारे फीचर्स होगा। लिटरेसी कितना है, उसके बाद इन्फेंट जो मोर्टेलिटी रेट होता है, उसके बाद और भी जो है डेंसिटी है वो कितना है। देन उसके बाद जो यहाँ पे आपका आ जाता है कि जो वेदर के बारे में आएगा, क्रॉप पैटर्न के बारे में आएगा आपको। उसके बाद जो फ्लोरा एंड फौना है उसके बारे में आएगा, फॉरेस्ट के बारे में आएगा, रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में आएगा, रिवर्स के बारे में आएगा, देन अगेन रिवर के बारे में आएगा, फिर फ्लड पे आपको ले जाएंगे और जो गंगा है उसके बाद उसकी जो और भी जो नदियां हैं, सहायक नदियां, उसके बारे में आएगा। फिर फ्लड के बारे में आप जानते हैं कि फ्लड के क्या रीजंस हैं और क्या क्या प्रयास हुआ। फिर उससे कनेक्ट करके आपको पूछ सकते हैं कि जो एक इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स जो एक नेशनल प्रोजेक्ट था उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट था, किस शासनकाल में या किस टेन्योर में वो प्रोजेक्ट को लाया गया, और एट प्रेजेंट जो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स है उसकी क्या स्थिति है। क्या बिहार की किसी नदियों को जोड़ा गया है, क्या बिहार की जो नदियां हैं उस प्रोजेक्ट का हिस्सा है तो कौन सा है, या अगर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट अगर सक्सेस नहीं हो रहा है तो क्या रीजंस है, साइंटिफिक रीजंस क्या है, इकोलॉजिकल रीजंस क्या है। देन आपको ये भी पता होना चाहिएगा कि जो मल्टीपर्पज जो डैम प्रोजेक्ट्स होते हैं बिहार में, आप जानते हैं शुरू में था, अभी झारखंड में भी चला गया है, तो वो कितना सक्सेसफुल है। आखिर ये जो फ्लड का प्रॉब्लम है हर एक साल आता है, हर एक साल जाता है, उसका क्या कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता है क्या। तो इसके बारे में आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा और हमेशा हमें पॉजिटिव रहना पड़ेगा कि सॉल्यूशन क्यों नहीं हो सकता, उसका तो करना पड़ेगा सॉल्यूशंस। देन ज्योग्राफी से रिलेटेड आपका एक और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आता है एंड दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। तो जैसे ही आप एग्रीकल्चर में जाते हैं तो आपको पता करना होगा कि एग्रीकल्चर में कितनी % जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, नंबर 1। नंबर 2, एग्रीकल्चर का जीडीपी में कितना रोल है। नंबर 3, एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारे इशूज हैं। फॉर एग्जांपल मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा, आप में से कुछ लोग नोट भी कर सकते हैं कॉपी पेन लेके, और बाद में उस सब को हम क्या करेंगे, आप खुद से भी डील करेंगे और जो हमारा इंडिविजुअल ग्रुप होता है उसमें भी इसको डिस्कस करेंगे। जैसे एग्रीकल्चर की बात आती है तो सबसे पहला जो सवाल आता है वो आपका है लैंड रिफॉर्म का। आप जानते हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे देश में बहुत सारे जो रिवोल्यूशनरी जो इनेक्टमेंट हुए थे पार्लियामेंट के द्वारा, उसमें से एक लैंड रिफॉर्म एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। और वो कितना इंपॉर्टेंट था इसका अंदाजा आपको इसी बात से लगा लेना चाहिए। इसको हमारे उस समय के जो नीति निर्माता थे उन्होंने क्या किया, इसको 9th शेड्यूल में डाला था। तो फिर 9th शेड्यूल के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि 9th शेड्यूल क्या है, क्यों कुछ एक्ट को हम 9th शेड्यूल में डालते हैं, उसको डालने का क्या मतलब है, क्या 9th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट किया जा सकता है या नहीं जा सकता है, ये हो गया। तो लैंड रिफॉर्म एक बहुत बड़ी बात है। लैंड रिफॉर्म क्या है, उससे कितने सारे कंपोनेंट्स है, तो आपको पता होना चाहिए कि लैंड रिफॉर्म एक्ट के 4-5 कंपोनेंट होते हैं। एक तो हो गया आपका लैंड सीलिंग एक्ट होता है, फिर कंसोलिडेशन ऑफ स्मॉल होल्डिंग्स होता है जिसको हम लोग चकबंदी भी बोलते हैं। तो जो लैंड रिफॉर्म एक्ट है, आप देखेंगे कि हम सभी जानते हैं
कि वो सिर्फ 2 स्टेट्स में अच्छे से लागू हो पाया, जिसमें एक तो था केरला और एक हो गया वेस्ट बंगाल। तो बिहार में आखिर क्यों नहीं हो पाया? जब सेंट्रल लेजिस्लेशन है और इसको हर एक स्टेट में होना चाहिए, तो बिहार में क्यों नहीं हो पाया? इसके क्या कारण थे? तो ये कारण के बारे में आपको जानना पड़ेगा। और क्या जो लैंड रिफॉर्म एक्ट है, अगर वो लागू हो जाता तो आज बिहार का जो एग्रीकल्चर है वो कहाँ पे होता? ये एक इमेजिनरी क्वेश्चन है, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका और नेशनल पर्सपेक्टिव में क्या है? फिर आप जानेंगे कि जो अपने पास लैंड कंसोलिडेशन नहीं हो पाया, लैंड रिफॉर्म एक्ट नहीं हो पाया, इसके वजह से क्या हो गया कि स्मॉल लैंड होल्डिंग्स है, जिससे क्या होता है जो मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर है वो नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे जो रोल आता है मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर का, और जब आप यहाँ के एग्रीकल्चर का जो कंपैरिजन है आप वहाँ से करेंगे, पंजाब से करेंगे, हरियाणा से करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो एक मेजर चीज है जो बिहार के एग्रीकल्चर को पंजाब और हरियाणा के एग्रीकल्चर से जो डिफर करता है, डिफरेंशिएट करता है, दैट इज मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। आप देखेंगे कि हमारा जो एग्रीकल्चर है बिहार में वो छोटे छोटे लैंड होल्डिंग के वजह से कि मैकेनाइज्ड फार्मिंग हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और पंजाब हरियाणा में ऐसा हो पाया है। तो इसके वजह से आप देखेंगे कि पंजाब हरियाणा में एग्रीकल्चर इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल as far as the job creation is concerned and as far as the employment giving employment is concerned. So वहाँ पे एग्रीकल्चर एक सबसिस्टेंस नहीं है, वहाँ पे एग्रीकल्चर इज ए काइंड ऑफ इंडस्ट्री। तो ये हमें भी देखना चाहिए। एग्रीकल्चर की जब हम बात करते हैं तो ये इम्पोर्टेंट है। देन एग्रीकल्चर से आएंगे तो फिर आपका फ्लड आएगा, एंड फ्लड के बारे में हम बोल चुके हैं। उसके बाद आपका आता इरिगेशन आता है। नाउ इरिगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इरिगेशन में आपका आएगा पहली बात कि टोटल लैंड एरिया कितना है जो कि इरिगेशन में है। इरिगेशन में कौन कौन सा मेथड यूज हो रहा है? कैनाल इरिगेशन हो गया, ट्यूबवेल इरिगेशन हो गया, और कुछ है जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे हो गया। नाउ नेशनल पर्सपेक्टिव पूछा जाएगा कि तमिलनाडु में पॉन्ड में जो था इरिगेशन ज्यादा होता है, बिहार में उसका क्या स्कोप है? क्या जो बाढ़ का पानी आया है उसको हम कैनल बना के उसको चैनलाइज कर सकते हैं, पॉन्ड बना के चैनलाइज कर सकते हैं? फिर बिहार में आप देखेंगे कि मिथिलांचल का रीजन है जहाँ पे पॉन्ड बहुत होता है, मखाना की खेती होती है। तो अपने आप में जो वाटर रिसोर्सेज है बिहार में बहुत ज्यादा, उसको कैसे यूज करेंगे? तो इरिगेशन एक बहुत बड़ा रीजन है। फिर आपसे सवाल आएगा कि आपके यहाँ फ्लड भी आता है, फिर आपके यहाँ ड्रॉट भी होता है, तो इरिगेशन का बहुत रोल हो जाता है। तो इससे आपको ये सब जोड़ना पड़ेगा, और इसी में आ जाएगा आपका डिप्लीटिंग ऑफ ग्राउंड लेवल वाटर, कि जो पानी का जो जलस्तर है, भूजल स्तर है, वो धीरे धीरे क्यों डिप्लीट कर रहा है? व्हाट आर द रीजंस एंड व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इन रिसेंट ईयर्स पर्टिकुलरली टू रिजुवनेट द जिस वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर लेवल। तो जो मैं बोल रहा हूँ उस सब में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसको ये करने के लिए, या कोई भी चीज जो मैं इशू बोल रहा हूँ उसमें जो रिसेंट ईयर्स में गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और आप गूगल करेंगे, गूगल में आपको सब कुछ मिलेगा। तो जब हम इरिगेशन की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि बिहार सरकार ने हाल ही में जो जल जीवन हरियाली जो योजना है उसको लागू किया है। तो जल जीवन हरियाली योजना है, उसके बहुत सारे मकसद हैं, लेकिन उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मकसद है जिसमें क्या है कि जो भूजल स्तर है, ग्राउंड वाटर लेवल जो है उसको रिचार्ज करना, रिजुवेनेट करना है। और इसमें आप देखेंगे कि बिहार के कई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ने, कुछ आप में से कुछ लोग तो ऑलरेडी बिहार एडमिनिस्ट्रेशन में है, तो आपने देखा होगा कि जो अपने बिहार गवर्नमेंट का फ्लैगशिप स्कीम है जल जीवन हरियाली, और उसमें कई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ने बहुत सारा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, कई लोगों के अवार्ड भी मिला है। तो इससे ही पूछा जा सकता है कि आप किसी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, आप बताओ आपके जिला कलेक्टर ने जल जीवन हरियाली के लिए क्या किया है। या ऐसे भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि आप अगर जिला कलेक्टर हो तो आप जल जीवन हरियाली को सफल बनाने के लिए आप क्या क्या कदम उठाओगे? जल जीवन हरियाली के क्या क्या ये हैं कंपोनेंट्स है, क्या क्या सैलिएंट फीचर्स हैं।
तो ये आपका फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हुए फिर आपको यहाँ तक आ जाएगा। देन आपका क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्या है, खरीफ क्या है, रबी क्या है, और एक थर्ड भी होता है फसल, उसको जायद बोलते हैं, तो वो सब के बारे में पूछा जाएगा। फिर कौन आपसे ये भी पूछा जाएगा खरीफ के कुछ फसल का नाम बताओ, कुछ रबी का बताओ, तो अलग अलग जो है उसका ये होता है। फिर आपको बिल्कुल माइन्यूट, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ हमें आइडिया चाहिए, नो, फैक्ट्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, और आपसे बहुत उम्मीद की जाती है। फॉर एग्जाम्पल पूछेगा कि ये बताओ तो गेहूं को बुआई करने का समय क्या होता है, धान के रोपनी का समय क्या होता है, बहुत डीप में भी क्वेश्चन पूछते हैं, और ये सही इंपॉर्टेंट हमें जानना